ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड पंपिंग ऑर्गन, वो ऑर्गन जो ब्लड को पंप करते हैं उसे कहते हैं हार्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, अमंग द वर्टिब्रेट, fishes are evolved in the amphibian, amphibians are evolved in the reptiles, reptiles are evolved in the birds, and finally birds are replaced by the mammals. Okay, तो जैसे जैसे एनिमल का इवोल्यूशन होता गया, एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती गई, उसी तरह हार्ट का स्ट्रक्चर भी बढ़ता चला गया। अगर हम इनिशियल वर्टिब्रेट्स यानी कि फिशेस के अंदर देखेंगे तो fishes having only 2 chamber heart, which is primitive type of heart, 2 chambered heart. Among these two, the upper chamber is called atria and lower chamber is called ventricle. तो यहाँ पर हम fishes का circulatory system एक 2 dimensional या rough diagram के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। Let us suppose this is heart that consisting on 2 chamber, upper chamber is atria and lower chamber is ventricle. Let us suppose these are the gills in the fishes which perform respiration, that is gaseous exchange, and these are the body organs or the body tissue which require oxygenated blood along with nutrients. So from the body organ, deoxygenated blood is transported in the ventricle of the heart, क्योंकि टिश्यू मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते समय कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा, तो ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज deoxygenated blood. So this deoxygenated blood is transported from body organ or tissue in the fishes to the ventricle of the heart. Now this ventricle pump the blood in the atria. From atria, the same, that is deoxygenated blood, is moved in the gills. गिल्स के सामने से जब ब्लड जाएगा तो गिल्स एटमॉस्फेयर से रिसीव करेगी ऑक्सीजन गैस, और ये गिल्स ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देगा। तो गिल ने इनहेल कौन सी गैस किया? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फिल की गई। अब ये ब्लड जो गिल से बाहर निकला ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So this oxygenated blood is passed from gill to the body organ. अब body organ ने यानी फिशेस के अंदर जो टिश्यूज हैं इन्होंने ब्लड कैरी रिसीव किए, ब्लड को ऑक्सीजन रिसीव किए, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट ब्लड के अंदर फिल किए, और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो गया। यहाँ पर हमको एक पॉइंट याद रखना है कि इन केस ऑफ फिशेस हार्ट receive the deoxygenated blood and give off or pump the deoxygenated blood. Deoxygenated blood को ही कैरी करेगा यानी रिसीव करेगा और deoxygenated blood को ही पंप करेगा। This is the speciality of 2 chamber heart found in the fishes, and this is supposed to be primitive type of heart since consisting only on 2 chamber. Now what happen in case of amphibians? अब ये नंबर A fishes consisting on 2 chamber heart, amphibians and the reptiles consisting on 3 chamber heart. इसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस रहेगा क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, अदरवाइज all the amphibian or all the reptile contain 3 chamber heart. Out of these 3, the upper 2 small chamber are known as atria, and lower only 1 larger chamber is called ventricle. ऊपर के 2 एट्रिया स्मॉलर हैं और नीचे का वेंट्रिकल लार्जर है। अब देखिए एम्फीबियंस के अंदर ये सपोज हार्ट है विथ 3 चैम्बर,
upper two atria and lower is a ventricle. This is left atria and this is right atria. Okay, now left atria receive oxygenated blood from the body surface or lungs or gills, क्योंकि एम्फीबियन और रेप्टाइल के एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल स्किन से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ गिल्स से, कुछ इंटायर बॉडी सरफेस से, और कुछ एनिमल एम्फीबियन और रेप्टाइल के ऐसे हैं जो तीनों ऑर्गन को यूज करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए. तो कोई भी ऑर्गन हो, चाहे गिल्स हो, लंग्स हो या बॉडी सरफेस हो, ऑक्सीजन को कैरी करके लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर किया गया. नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया टू द वेंट्रिकल. नाउ वेंट्रिकल रिसीव विच ब्लड? Plus O2 means oxygen rich blood, that is oxygenated blood. At the same time, right atrium from the body organ receive deoxygenated blood. Minus O2 मतलब deoxygenated, and the same deoxygenated blood is transported from right atria to the common ventricle. ये ventricle है, V for ventricle. So ventricle के अंदर लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सी एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं एंड वेंट्रिकल पंप आउट द मिक्स्ड ब्लड. वेंट्रिकल पंप आउट मिक्स ब्लड. तो यहां जब आप एट्रिया को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन जब वेंट्रिकल में देखेंगे तो सिंगल सर्कुलेशन. इट इज कॉल्ड एज डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम. डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यहां पर ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल शो द प्रेजेंस ऑफ डबल बट यस इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन. स्पेशलिटी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. अब जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा, हमने 4 ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप स्टडी किया. पहले फिशेस, फिशेस के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल, और रेप्टाइल के बाद बर्ड. ये 4 और 5वां सबसे एडवांस मैमल्स. तो व्हेन बर्ड्स एंड मैमल्स आर इवॉल्व्ड, ये एक ही टाइप का हार्ट रिप्रेजेंट करते हैं. इनका कैटेगरी भी सेम लिखेंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स. बर्ड्स एंड मैमल शो द प्रेजेंस ऑफ 4 chamber heart. Among these 4, upper 2 chamber which are smaller in size are called as atria, and both atria are the receiving chamber of the heart. क्योंकि दोनों भी एट्रिया ब्लड को रिसीव करते हैं. राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा. तो एट ऑल ब्लड इज रिसीव्ड, देयरफॉर बोथ एट्रिया आर कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर. लोअर 2 chamber of the heart are larger in size with thick wall, and the lower 2 chamber are known as ventricles. They are distributing chamber, क्योंकि ये ब्लड को पंप करते हैं और ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू तक जाएगा एओर्टा के थ्रू, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. So this 4 chamber heart in birds and mammal show the presence of complete double circulation or complete double circulatory pathway. Now look very carefully how the double circulation takes place through the 4 chamber heart. Let us suppose this is our, that is human, क्योंकि ह्यूमन भी मैमल्स में काउंट किए जाते हैं. दिस इज आवर 4 chamber हार्ट. दीज आर अपर 2 receiving chamber which are smaller in size. This is called left atria and it is called as right atria. Ventricle of the same site, it is left ventricle and it is right ventricle. Okay. Now let us suppose here is a lungs which perform the breathing process and exchange of respiratory gas from blood to the alveoli cell.
and let us suppose these are the body tissue or body organ or body tissue which require the oxygenated blood along with oxygen, nutrient, hormone and so on. So now it is a time to represent the circulatory pathway. बॉडी ऑर्गन ने मेटाबॉलिज्म के थ्रू मूविंग ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ये ब्लड जाएगा धीरे धीरे ऊपर, वेन्यूल्स द फाइन ब्रांचेस रहेगी, वेन्स रहेगी, और जो लार्जेस्ट वेन बनेगी जो कैरी करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को, इस लार्जर साइज वेन को कहा जाएगा वीना कावा। और वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोअर कर देगी राइट एट्रियम में। सो दिस इज राइट एट्रियम विच रिसीव -O2, दैट इज deoxygenated blood. So from where deoxygenated blood is transported? Deoxygenated blood is transported from the body tissue or organ through venules, vein and finally vena cava. So vena cava transport deoxygenated blood, -O2 means deoxygenated blood in the right atrium. From the right atrium, deoxygenated blood is transported to the right ventricle. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में मूव होने के लिए इन दोनों चैम्बर के दरमियान एक कॉमन ओपनिंग रहेगी. दिस कॉमन ओपनिंग इज गार्डेड बाय द 3 मस्कुलर फ्लैप एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व. कार्डियक साइकिल में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं. So deoxygenated blood now get moved from right atrium to the right ventricle. When the right ventricle get pumped, that is volume reduces and pressure increases, the deoxygenated blood is then passed away from the right ventricle through this broad sized artery. This artery is known as pulmonary artery. So pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricle to the lungs directly, to the lungs. So this is the pulmonary artery. ये lungs तक deoxygenated blood को लेकर गई. अब lungs ने gaseous exchange परफॉर्म किया. ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ने रिसीव कर लिया, वेस्ट प्रोडक्ट भी रिसीव कर लिया और रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सहेल कर दिया. ब्रीथ इन के थ्रू या इनहेलेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर तक आई, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे. सो ऑक्सीजन इज अपलोडेड इनसाइड द ब्लड. तो यहां से जो ब्लड आगे जाएगा ये ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ने ले लिया, ऑक्सीजन डोनेट कर दिया. Oxygen rich blood means oxygenated blood, and the oxygenated blood is enter in the left atrium. Left atrium receive which blood? Plus O2 means oxygenated blood. From left atrium, oxygenated blood is moved into the left ventricle through a common opening. This opening is guarded by only 2 muscular flaps. So this opening between left atrium and left ventricle is called as bicuspid valve. Bicuspid valve is also called as mitral valve. So oxygenated blood is now entering the left ventricle. When left ventricle get pumped, volume reduces again and pressure is increases. So oxygenated blood is moved out from the left ventricle and goes to the body tissue or body organ like this. This large size capillary which conduct the oxygenated blood away from the left ventricle is known as aorta. Okay, so aorta, अब aorta से जो oxygenated blood आया body organ या tissue तक,
तो बॉडी ऑर्गन टिश्यू ऑक्सीजन खींच लेंगे, न्यूट्रिएंट हार्मोन को खींच लेंगे और डोनेट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल. सो दिस इज द जंक्शन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस इन टू लोकेशन. एक लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ और दूसरा बॉडी टिश्यू में गैसियस एक्सचेंज हुआ. सो इन दिस वे द टू कंप्लीट सर्कुलेशन इज परफॉर्म्ड. एक सर्कुलेशन लंग्स के थ्रू है और दूसरा सर्कुलेशन ऑर्गन के थ्रू है. जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के दरमियान होता है इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी टिश्यू या ऑर्गन के दरमियान होता है इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. So one is systemic circulation, that is below the heart, and another is, yes, pulmonary circulation through the lungs. So two complete double circulatory system is found in the human heart. Not only in human heart but all the mammals and bird show the presence of complete double circulation. अब इसमें बहुत डिटेल है कि सेमिलुनर वेल्व कौन सी है, पल्मोनरी वेन इसे कहा जाएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में डोनेट करती है. पल्मोनरी आर्टरी ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया है, एओर्टा नाम दिया है, वीना कामा नाम दिया है. तो और डिटेल हम ह्यूमन हार्ट के समय डिस्कस करेंगे. थैंक यू.